اچھا اقدام ہے. ہم تو یہی کہیں گے جی ایسا ہونا چاہیے, عوام کو کوئی ریلیف ملنی چاہیے, اچھے کام کی تعریف کرنی چاہیے. بہت ٹائم بعد ہی اس میں بہت کمی آئی ہے, تو سب لوگ اس سے بہت خوش ہیں. نگران حکومت دے بڑے شکر گزار ہے گیا تے جنہ تیل دی قیمتاں گھٹائیاں نے تے کنک دی بجائی دا موسم ہے تے زمیندار نوں اس گل دا بڑا فائدہ ہوے گا. یہ بہت اچھا اقدام ہے حکومت کا, نگران حکومت کا, اور یہ سیٹ اپ اور بھی اچھا ہونا چاہیے, اور یہ عوام کو ایک ریلیف مل رہا ہے. نگران حکومت کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے پٹرول دی قیمت دے وچ 40 روپے کمی کر کے غریب عوام نوں ریلیف دیتا ہے. مہنگائی کی شدید لہر کے بعد عوام کے لیے بڑی خوشخبری. حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ریکارڈ کمی کا اعلان. پیٹرول کی قیمت میں 40 روپے فی لیٹر کمی, نئی قیمت 283 روپے 38 پیسے فی لیٹر ہو گئی. ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں بھی 15 روپے کی کمی, نئی قیمت 303 روپے 18 پیسے فی لیٹر مقرر. جیسے ہی نگراں حکومت کے لیے ممکن ہوا پیٹرول اور ڈیزل سستا کر دیا گیا. جب جب ان قیمتوں میں اضافہ ہوا ٹرانسپورٹ شعبے نے مال برداری اور کرایوں میں اضافہ کیا. اب ان پر لازم ہے کہ ان میں کمی کی جائے اور عوام کو ریلیف دیا جائے. صوبائی اور ضلعی انتظامیہ اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کریں. نگراں وفاقی وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی کا ٹویٹ. ڈالر کی قدر میں کمی کا سلسلہ جاری. ڈالر 1 روپے 14 پیسے مزید سستا ہو گیا. انٹر بینک میں ڈالر 276 روپے 48 پیسے پر آ گیا. گزشتہ کاروباری روز انٹر بینک میں ڈالر 277 روپے 62 پیسے پر بند ہوا تھا. معیشت کی بحالی کے لیے آرمی چیف کے اقدامات پر عوام کا اظہار مسرت. اسمگلنگ کی روک تھام اور افغان ٹرانزٹ سے متعلق فیصلے خوشائند اور قابل تعریف ہے. آرمی چیف کے اقدامات کے باعث پاکستان آگے کی جانب بڑھ رہا ہے. یہ سلسلہ چلتا رہا تو انشاءاللہ پیٹرول کی قیمتوں میں مزید بھی کمی آئے گی اور باقی مہنگائی بھی کم ہو جائے گی. عوام کا اظہار خیال. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ چین کے صدر شی جن پنگ کی دعوت پر بیجنگ روانہ. وزیر اعظم تیسرے بیلٹ اینڈ روڈ فورم میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے. صدر شی جن پنگ سمیت چین کی اعلیٰ قیادت کے ساتھ ملاقاتوں میں دو طرفہ امور پر بات ہوگی. زراعت اور گرین انرجی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کے سمجھوتوں پر بھی دستخط ہوں گے. چین کی کاروباری شخصیات اور بڑی کمپنیوں کے سربراہان سے ملاقاتیں بھی شیڈول. پاک چین دوستی دونوں ممالک کے مفادات کا تحفظ کرتی ہے. پاکستان ان پہلے ملکوں میں شامل ہے جو بی آر آئی کا حصہ بنے. سی پیک بی آر آئی کا فلیگ شپ منصوبہ ہے. سی پیک سے ہماری توانائی کی ضروریات پوری ہوئیں, ملازمتوں میں نئے مواقع پیدا ہوئے. سی پیک کو ترقی اور خوشحالی کی راہداری بنانے کے حوالے سے چین کی تجویز کی مکمل حمایت کرتے ہیں. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا معروف چینی اخبار گلوبل ٹائمز میں مضمون. 7 دہائیوں پر مشتمل پاک چین تعلقات دوستی, بھائی چارے اور اعتماد پر قائم ہے. دونوں ممالک کے تعلقات مضبوط تصویراتی شراکت داری میں تبدیل ہو چکے. پاک چین دوستی خطے میں امن اور استحکام کا باعث ہے. ہم ون چائنا پالیسی کی مکمل حمایت کرتے ہیں. علاقائی سلامتی, خود مختاری, معاشی تحفظ اور کشمیر کے حوالے سے چین کے تعاون پر مشکور ہیں. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ. اسرائیل کی غزہ پر جارحیت کا 10واں روز. صہیونی فورسز کے وحشیانہ حملے جاری. ہزاروں ٹن بارود نہتے فلسطینیوں پر گرا چکی. شہداء کی تعداد 2670 ہو گئی ہے. 11,000 زخمی, 10 لاکھ سے زائد بے گھر ہو چکے. اقوام متحدہ کا غزہ کا محاصرہ فوری ختم کرانے کا مطالبہ.
غزہ کے معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان کو غزہ میں جاری تشدد اور جانی نقصان پر گہری تشویش ہے۔ فلسطینی عوام کے ساتھ یکجہتی سے کھڑے ہیں۔ غزہ کی بگڑتی صورتحال پر OIC اور رکن ممالک سے قریبی رابطے میں ہیں۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا ٹویٹ، غزہ کی ناکہ بندی ختم اور فوری طور پر جنگ بندی کرانے کا مطالبہ۔ فلسطین کے پاس کوئی باقاعدہ فوج نہیں ہے، اگر ہوتی تو اس کی سرحدوں کی حفاظت کرتی۔ ملک کی دفاع کے لیے مضبوط فوج کا ہونا ضروری ہے۔ پاکستان بہت مضبوط ہاتھوں میں ہے، ہماری فوج ملک کا دفاع کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ الحمدللہ ہمارے ملک میں جو امن ہے وہ پاک فوج ہی کی بدولت ہے۔ فلسطین میں جنگ کے پیش نظر عوام کا پاکستان کے حالات اور پاک فوج سے متعلق اظہار خیال۔ ICC کرکٹ ورلڈ کپ کا 14واں میچ آج آسٹریلیا اور سری لنکا کی ٹیمیں لکھنؤ میں مد مقابل۔ میچ دن 1:30 پر شروع ہوگا اور PTV سپورٹس HD پر براہ راست دکھایا جائے گا۔ ایونٹ میں دونوں ٹیموں نے 2 میچز کھیلے، تاحال پہلی کامیابی کی منتظر۔ ICC کرکٹ ورلڈ کپ کا 13واں میچ نئی دہلی میں افغانستان کی انگلینڈ کو اپسٹ شکست۔ دفاعی چیمپئن انگلینڈ کے خلاف 69 رن سے کامیابی۔ رحمان اللہ گرباز نے 80 رنز کی اننگز کھیلی، اکرام علی خیل کے 56 رنز، مجیب الرحمان اور راشد خان کی 3 وکٹیں۔ ایونٹ PTV سپورٹس پر براہ راست۔ آئین کا آرٹیکل 19A ہر شہری کو معلومات تک رسائی کا حق دیتا ہے۔ معلومات کے حصول کے لیے وجوہات دینا ضروری ہے۔ معلومات فراہم کرنے والے شخص کے لیے بھی وجوہات کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کا فیصلہ۔ عدالت کا درخواست گزار کو 7 روز میں معلومات فراہم کرنے کا حکم۔ پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کا انخلاء، ڈیڈ لائن میں 15 دن باقی، مزید 1530 لوگوں کی تورخم بارڈر کے ذریعے وطن روانگی۔ 31 اکتوبر تک پاکستان چھوڑنا ہوگا، وگرنہ قانون نافذ کرنے والے ادارے گرفتاری اور ملک بدری کو یقینی بنائیں گے۔ سمگلنگ اور ذخیرہ اندوزی کی روک تھام کے لیے جاری مہم کے مثبت نتائج منظر عام پر آ گئے۔ کارروائیوں میں مجموعی طور پر 4275 ٹن سے زائد کھاد، 2156 میٹرک ٹن سے زائد گندم و آٹا، 8259 ٹن سے زائد چینی اور بڑی مقدار میں ایرانی تیل برآمد۔ اس کے علاوہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کراچی میں کامیاب کارروائی میں 63 غیر قانونی واٹر ہائیڈرنٹس پکڑ لیے۔ شہدائے پاکستان کو سلام۔ پاک وطن کی مٹی میں انگنت شہداء کا خون شامل۔ وطن پر جان نچھاور کرنے والے شہداء میں صوبیدار قیصر رحیم شہید بھی شامل۔ ضلع باجوڑ سے تعلق رکھنے والے قیصر رحیم شہید نے 14 ستمبر 2023 کو کوئٹہ کے علاقے ولی تنگی میں دہشت گردوں کے خلاف لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ ہمیں قیصر رحیم کی شہادت پر فخر ہے۔ صوبیدار قیصر رحیم شہید کے اہل خانہ کے احساسات۔ قائد اعظم کے دستے راست اور ملک کے پہلے وزیر اعظم نوابزادہ خان لیاقت علی خان کی آج برسی۔ ان کے ملک و ملت کے لیے خدمات تاریخ کا ایک سنہرا باب۔ قیام پاکستان کے بعد بطور وزیر اعظم انہوں نے قائدانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ صدر مملکت اور نگراں وزیر اعظم کا قائد ملت لیاقت علی خان کو خراج تحسین۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج خوراک کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ دن کا منانے کا مقصد مختلف پالیسیوں اور اقدامات کے لیے حکومتوں اور دیگر سٹیک ہولڈرز کی حمایت حاصل کرنا ہے۔ رواں سال کا موضوع پانی زندگی ہے، پانی خوراک ہے، کوئی پیچھے نہ رہ جائے۔ غذائی قلت کے خاتمے کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کا فعال کردار ہونا ضروری ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی۔ راولپنڈی، اسلام آباد سمیت پنجاب، خیبر پختونخوا، بالائی سندھ، بلوچستان، گلگت بلتستان اور کشمیر کے کئی شہروں میں بارش اور یالہ باری، پہاڑوں پر برف باری، سردیوں نے دستک دے دی۔ بالائی علاقوں میں پارہ نقطہ انجماد سے نیچے گر گیا، لوگوں نے گرم ملبوسات نکال لیے۔ بارشوں کا حالیہ سلسلہ مزید 1 دن تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات۔
और गवादर में 5वीं ऑफ रोड रैली का कल से होगा आगाज। तैयारियां मुकम्मल। 250 किलोमीटर ट्रैक पर 200 से ज्यादा मुल्की और गैर मुल्की मर्द और खवातीन रेसर्स किस्मत आजमाएंगे। इवेंट में पहली बार जीप रैली के अलावा मोटर बाइक रेस की 2 अलग अलग कैटेगरीज भी शामिल। म्यूजिकल नाइट, आतिशबाजी और दिलचस्प रंगारंग प्रोग्राम इफ्तिताही और इख्तितामी तकरीब का हिस्सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अयाज असलम और मैं हूं हुमा मलिक। सबसे पहले आपको अच्छी खबर देंगे। महंगाई की शदीद लहर के बाद आवाम के लिए खुशी की खबर आ गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिकॉर्ड कमी कर दी गई है। निगरां हुकूमत ने आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी और डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में इजाफे के पेश नज़र पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में वाज़ेह कमी की है। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 40 रुपये फ़ी लीटर कमी के बाद पेट्रोल की नई कीमत 283.38 रुपये फ़ी लीटर हो गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी 15 रुपये की कमी की गई है, जिसके बाद इसकी नई कीमत 303.18 रुपये फ़ी लीटर मुकर्रर हो गई है। निगरां वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने अपने ट्वीट में कहा है कि जैसे ही निगरां हुकूमत के लिए मुमकिन हुआ तो पेट्रोल 40 रुपये और डीजल 15 रुपये सस्ता कर दिया गया। जब जब इन कीमतों में इजाफा हुआ, ट्रांसपोर्ट के शोबे में माल बर्दारी और किराए में इजाफा किया गया। अब उन पर लाजिम है कि उनमें कमी की जाए और आवाम को रिलीफ दिया जाए। उन्होंने कहा कि सूबाई और ज़िले इंतजामिया को इस सिलसिले में अपना किरदार अदा करना चाहिए। और नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का ऐलान किया गया है। जिंदा दिलाने लाहौर ने भी निगरां हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत में खातिर खा कमी को खुशाइन करार देते हुए इस फैसले को आवाम के लिए बड़ा रिलीफ करार दिया है। शुक्र है हुकूमत ने जो आवाम को रिलीफ दिया है। पेट्रोल से उम्मीद है कि आवाम जो ट्रांसपोर्ट के किराए और बाकी चीज़ें भी सस्ती होंगी। ये अच्छा एक इकदाम है कि इतना सारा और इतना ह्यूज, पहले तो 10 का या 15 रुपए का फ़र्क पड़ता था, लेकिन इस दफ़ा इन्होंने ऐसा किया कि 40 रुपए का डिफरेंस डाला है, तो इसका फ़ायदा दूसरी चीज़ों पे भी आना चाहिए। मेरा दिल यकीन माने इतना खुश हुआ है। पहले मैं फ्यूल इधर से नहीं डलवाना, मैं कहा यार रहने दो, आज बाइक निकाली का शुक्र है सस्ता है। अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है सर, और नीचे आ जाएगा तो हमारे लिए बेहतर, हम और खुश हो जाएंगे। मुल्क की माशी अशारियों में बतदरीज बेहतरी, रुपए की कदर मुस्तहकम होने और आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी के असरात के समरात आम आदमी तक पहुंचने का सिलसिला जारी है। पेट्रोल की कीमतों में 40 रुपये और डीजल की कीमत में 15 रुपये फ़ी लीटर नुमाया कमी से आम सारिफ समेत किसानों को भी बड़ा रिलीफ मुमकिन हो सका है। बहुत अच्छी हमें रिलीफ दी गई है, तो काफ़ी अच्छा हमारे साथ हो जाता। तो यह है कि लीटर आ जाता है 300 में। ज़राअत पर बहुत अच्छा इसका असर है, क्योंकि ज़राअत जो है इससे बगैर चल नहीं सकता। हमने ट्रैक्टर चलाना होता है, इसमें और भी काम है, ट्रिप एंड ट्यूबवेल वगैरह हम डीजल पे चलाते हैं, और इससे ये तो एक है हमारे इनपुट में कमी आएगी, अखराजात में कमी आएगी और नफ़े में इजाफा होगा। जी, ये पेट्रोलियम की मसनूआत में जो कमी है, ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इकदाम है। इससे छोटे काश्तकारों को बहुत फ़ायदा होगा। जो डीजल डाल के ट्रैक्टर में हम जो गाड़ी चलाते हैं, इससे में हमारा फ़ायदा है, कमी आएगी, खर्चे में भी कमी आएगी। हम खुद मजदूर तबका है, जहाँ हम 100 का डलवाते थे हमें 200 का लगता था, सिर्फ स्टेट एरिया जाते थे, ठीक है, और काफ़ी बेहतरी आएगी। इतना पेट्रोल कम होगा, महंगाई कम होगी, गरीब तबका उतना खुशहाल होगा। बहुत परेशान थी अवाम, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, होना चाहिए। रोज़गार नहीं है, बेरोज़गारी बहुत है, महंगाई बहुत है, बस ये पेट्रोल से भी बहुत फ़ायदा हुआ है। बेहतरी आएगी, ठीक है, और महंगाई भी कम होगी, इसको भी और मज़ीद नीचे आना चाहिए। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा रिलीफ दिया गया है। मुल्क भर की तरह सिंध के अवाम ने भी इस इक़दाम को बेहतरीन करार दिया है। हैदराबाद में हमारे नुमाइंदे शराज अली डाहरी मौजूद हैं, उनसे जान लेंगे। जी शराज। जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े पैमाने पर रिलीफ दिया गया है और आवाम ने इसको खुशाइन करार दिया है। 40 रुपये कम हुए हैं, अल्लाह का शुक्र है, उम्मीद है कि आगे और कम होंगे। हुकूमत जी मेहरबानी है जो असांखे थोरो कयो आहे, तमाम गरीब थोड़ो घणो रिलीफ मिली वियो आहे, ये तमाम असी हुकूमत जो शुक्रगुजार है। अल्लाह का शुक्र है, बहुत फ़ायदा हुआ है। 40 रुपये भी बहुत होते हैं, गरीब आवाम के लिए बहुत बेहतर हुआ है ये काम। हुकूमत अच्छा काम कर रही है, लिहाजा ये कि गरीब से दुआई निकलेगी,
और इंशाल्लाह आगे भी बेहतर काम होगा। बाइक वाले का ये फ़ायदा है, 150 भराएंगे तो पूरा दिन घूम लेते आराम से। पहले के 200 में कोई पेट्रोल नज़र आता ही नहीं था, अभी कुछ थोड़ा फ़ायदा आवाम को रिलीफ से मिलेगा। रनाला खुर्द में भी निगरान हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ट्रांसपोर्टर्स, काश्तकारों और कारोबारी हलकों की जानिब से खैर मकदम किया गया है। इसे एक बड़ा रिलीफ करार दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ का बेहद शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने पेट्रोल की कीमत में 40 रुपये कमी की है, जिससे हमारे कारोबार में मज़ीद इजाफा होगा। निगरान हुकूमत दे बड़े शुक्रगुजार है गए तो जिन्हें तेल दी कीमतां घटाइयां ने तो कणक की बिजाई का मौसम में तो जिमींदार ने उस गल का बड़ा फायदा होगा। कणक की बिजाई के मौके ते तेल दी कीमतां घटा के जिमींदारां नूं बहुत गवर्नमेंट ने फायदा दे दिता जी। निगरान हुकूमत का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने पेट्रोल की कीमत दे विच 40 रुपये कमी करके गरीब आवाम नूं रिलीफ दिता है। रात को 12 बजे से जो है 15 रुपये लीटर फी लीटर डीजल कम हो गया। अभी 20,000 22,000 हमारा खर्चा कम हो जाएगा। जब गाड़ी का खर्चा कम हो जाएगा तो गाड़ी का किराया भी कम लगेगा। जब किराया कम लगेगा तो ऑटोमेटिक चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी से बहावल नगर के शहरियों के चेहरे भी खुशी से खिल उठे हैं। हुकूमत के इस इक़दाम को खूब सराहा जा रहा है। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे राना फैसल रहमान। हाँ जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत में जो बड़ी कमी की गई है उससे बहावल नगर के शहरियों की खुशियाँ जो है वो लौट आई हैं। काफ़ी परेशान थे लोग। पेट्रोल सस्ता हुआ ना पाकिस्तान में, ये बहुत अच्छा इक़दाम है। इससे पेट्रोल की मसनूआत जो कम होगी और चीज़ें भी सस्ती होंगी। जो गवर्नमेंट ने आज रात 40 रुपये रेट पेट्रोल का कम किया और 18 रुपये डीजल का रेट कम किया है, इससे महंगाई नीचे आएगी और बहुत अच्छा इकदाम किया गवर्नमेंट ने। हुकूमत वक्त बहुत अच्छा इकदाम करेगी और इंशाल्लाह ये जो हुकूमत है ये सब कोई करके दिखाएगी। लोगों का कहना है कि जो इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत में कमी की गई है उससे जो है सब्जियाँ, दालें, चीनी और दीगर जो अशिया जो है वो भी सस्ती होंगी। लोग जो है वो काफ़ी सराह रहे हैं इस इकदाम को और जो लोग हैं उनका ये कहना है कि हुकूमत जो है वो इसी तरह के इकदाम ले ताकि जो हमारी जो परेशानी है उसमें कमी वाक़ हो सके। निगरान हुकूमत की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में खातर खा कमी। जेहलम से हमारे नुमाइंदे नईम अख्तर भट्टी एक पेट्रोल पंप पे मौजूद हैं, मजीद उनसे जान लेते हैं। मैं जेहलम के एक पेट्रोल पंप पे खड़ा हूँ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में खातर ख्वाह कमी के बायस अशिया खुर्द-ओ-नोश और दीगर मसनूआत की कीमतों में भी कमी मुतवक्के है, जिसके बायस महंगाई की शरह में कमी वाक़या होगी। इस पर जेहलम के शहरियों का क्या कहना है, आइए इसे जानते हैं। बड़ी खुशी हुई है जनाब, ये जो पेट्रोल गवर्नमेंट ने कम किया, इसकी वजह से ये है कि 40 रुपये सस्ता हो गया पेट्रोल और 15 रुपये उन्होंने डीजल सस्ता किया। इससे ये है कि आने वाले दिनों में हमें उम्मीद है कि जो चीज़ें महंगी हो गई थी वो भी सस्ती होंगी, यानी मज़ीद चीज़ें भी सस्ती हो जाएंगी पेट्रोल से, क्योंकि पेट्रोल की वजह से ही महंगी हो रही है हर चीज़। तो इंशाल्लाह काफ़ी बेहतर होएगा। निगरान हुकूमत को हम मुबारकबाद देते हैं। गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करते हैं कि उसने इकट्ठा ही 40 रुपये कम कर दिया। जी, शहरियों का यही कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत में पेट्रोल की कीमत 40 रुपये और हाई डीजल की कीमत 15 रुपये कमी जो निगरान हुकूमत का ऐसा इक़दाम है, इससे महंगाई की शरह में भी कमी वाक़या हो गई। शहरियों ने इसमें खुशी का इजहार भी किया है। पेट्रोलियम मसनूआत में नुमाया कमी पर आज़ाद कश्मीर के शहरियों ने भी खुशी का इजहार किया है। हुकूमत के इस इक़दाम को माशी तौर पर बेहतरी की जानिब अहम कदम करार दिया गया है। इससे आम आदमी को बड़ा रिलीफ मिलेगा। पेट्रोल की प्राइसेस कम हुई हैं, ये खुशाइन बात है, लेकिन इसका अगर रिलीफ मिलेगा तो गुड्स जो है ट्रांसपोर्ट उनमें किराए में कमी होनी चाहिए। हुकूमत की तरफ से यह पेट्रोलियम की कीमतों में 40 रुपये पेट्रोल की कीमत में जो कमी हुई है, इसका फ़ायदा तो बहुत खुशाइन बात है। इससे आवाम को काफ़ी रिलीफ मिलेगा। इसी तरह ये ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस जो हैं उनमें भी कमी आएगी। मुल्क की मईशत बेहतरी के जानिब गामजन। डॉलर के मुकाबले में रुपया मजबूत होता जा रहा है। आज भी इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये और 14 पैसे सस्ता हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 276 रुपये और 38 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत खरीद 274 रुपये जबकि कीमत फरोख्त 277 रुपये पर पहुंच चुकी है। दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट में मिला जुला रुझान देखने में आ रहा है। कारोबार के आगाज में 100 इंडेक्स में 425 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। हुकूमत की बेहतर माशी पॉलिसियों की बदौलत 2 हफ्तों के दौरान स्टॉक मार्केट में 3000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया।
मईशत की बहाली के लिए आर्मी चीफ के इक़दामात को आवाम ने खुशाइन और काबिल तारीफ करार देते हुए कहा कि आर्मी चीफ के इक़दामात के बायस पाकिस्तान आगे की जानिब बढ़ रहा है। अवाम ने इससे मुतालिक इजहार ख्याल करते हुए मजीद कहा, फ्यूल प्राइस का कम होना यकीनन खुशाइंद है। जो आर्मी चीफ साहब की एफर्ट्स हैं इकॉनमी की स्टेबिलिटी के हवाले से, उन्होंने अफगान ट्रांजिट के हवाले से जो स्टेप्स लिए, बिलखसूस स्मगलिंग की रोकथाम के लिए जो स्टेप्स लिए, आई थिंक ये खुशाइंद है और अप्रिशिएटेबल है। बहुत अच्छे इकदाम किए हैं पाक आर्मी के साथ। आवाम की बदगुमानी ख़त्म हो रही है कि अच्छे इकदाम की वजह से पाकिस्तान जो है आगे की तरफ जा रहा है। पेट्रोल रोज़ बरोज़ कम होता जा रहा है। पाक फौज जिंदाबाद। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप जैसे कि तेल की कीमतों को बहुत कम कर रहे हैं और जब तक हमारी ज़िंदगी है हम इसी तरह पाक फौज के साथ जुड़े रहेंगे। ये नीचे आ सकता है, जिस तरह उन्हें इकदाम उठाए हैं उसको और भी चाहिए कि और भी इकदाम उठाएं। अच्छी बात है, और भी सस्ता होगा इंशाल्लाह, उम्मीद है। तो महंगाई भी थोड़ी नीचे आ जाएगी पेट्रोल के साथ, क्योंकि पेट्रोल महंगा है तो तभी सारी चीज़ें ऊपर जा रही है ना। पेट्रोल सस्ता होगा तो सारी चीज़ें इंशाल्लाह नीचे आ जाएंगी। इस निज़ाम को सराहते हैं कि उसने डॉलर और जो ज़रूरी इकदाम है उसको कंट्रोल किया हुआ है। इसकी वजह से सोने में कमी आई है, डॉलर के रेट में कमी आई है और महीने में तकरीबन 2 बार पेट्रोल डीजल में कमी आई है रेट्स में। तो इसी तरह कर इंशाल्लाह महंगाई ख़त्म हो जाएगा। पेट्रोल जब सस्ता हो गया हर चीज़ सस्ता हो जाएगा। पेट्रोल की कीमतें इन्होंने कम की हैं, अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया इनका। कोई ऐसा सिस्टम करें कि खाने पीने की चीज़ों पर भी जो इतने टैक्सेस हैं, यहाँ पर इतनी महंगाई है, वो भी कम करें। ये अच्छी बात है कि पेट्रोल कीमतों में कमी आ जाए। इस तरह पेट्रोल की कीमतें कम हो जाए तो इसके साथ और चीज़ों की भी कीमतें कम हो जाएंगी। ये अच्छा फैसला हुकूमत का कि पेट्रोल की प्राइस कीमतें कम कर रहे हैं। इससे ये होगा कि इससे महंगाई भी थोड़ी सी कम होगी। तो हमारा तो हुकूमत से ये मुतालबा है कि इस तरह के और मज़ीद इक़दाम किए जाएँ जिससे आवाम को फ़ायदा हो। हमारे लिए सहूलत देख रहे हैं वो सिर्फ आप पाक आर्मी है, उनके जायज़े के हिसाब से चलें तो शायद हम अंधेधुन खाते से भी निकल जाएंगे। अगर आर्मी चीफ इस तरह इक़दाम उठाए तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये सारे कंट्रोल हो जाएंगे। अच्छा इकदाम किया जी, इसमें तो काफ़ी बेहतरी आ रही है, तो डॉलर भी नीचे आ रहा है। गरीब आवाम के लिए बहुत अच्छी बात है। जब ये आसिम मुनीर साहब आए हैं तो इनकी वजह से काफ़ी पेट्रोल और डीजल जो फ्यूल हैं इनमें इनके जो टैक्सेस हैं वो कम होते जा रहे हैं। तो इससे हम जैसे लोकल बंदे के लिए काफ़ी फ़ायदा होगा। आर्मी चीफ ने जो इक़दाम किए हम बहुत खुश हैं, अल्लाह करे कि और भी सस्ता है। इस्लामाबाद के अवाम ने भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी पर मुसर्रत का इजहार करते हुए वफाकी हुकूमत के इक़दामात को सराहा है। अवाम इस चीज़ से खुश है कि जी 350 से 350 से रेट 283 पे रेट आया है। पेट्रोल सस्ता हुआ है, इससे हमारी ज़िंदगी पे तो काफ़ी फ़र्क पड़ना है। पहले तो डेली जो हम आते हैं वो 56 किलोमीटर है, तो उसमें हमें आज 500 रुपये का डिफरेंस हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। रात को नहीं डलवाया था इसीलिए सुबह अभी लाइनें लगी हुई हैं, तो हमें बड़ा फ़ायदा होगा। हम प्राइवेट मुलाजम है, ये बच्चों को लेके जाते हैं आगे पीछे घूमने के लिए। पेट्रोल बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, अब कम हो गया। इन लोगों का बहुत शुक्रिया, हुकूमत का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम। रोजगार में यही है जी, जो 500-400 का तो फ़र्क पड़ ही जाता है। ज़्यादा पेट्रोल सस्ता होगा, सब कुछ ही सस्ता है। फिर बड़ी अच्छी कावश है, अच्छा सेटअप गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है, जो 40 रुपये कम हुआ है, बड़ा फ़ायदा होगा इससे इंशाल्लाह। रज़ी 3 से 4 हज़ार रुपया मंथली अगर ये रेट यहीं पर रहे तो बहुत अच्छा स्टेप है ये, और आवाम काफ़ी खुश है इस डिसीजन से गवर्नमेंट के, कि काफ़ी बड़ा रिलीफ मैं समझती हूँ। 40 रुपये कम करके काफ़ी बड़ा रिलीफ है आवाम के लिए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ चीन के सदर शी जिनपिंग की दावत पर बीजिंग रवाना हो गए हैं।
वज़ीर आज़म अपने दौरे में बैनुल अक़वामी ताउन के लिए तीसरे बेल्ट एंड रोड फोरम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर आज़म चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के तहत गुज़िश्ता 10 बरसों में होने वाले तरक्याती कामयाबियों के साथ मुस्तक़बिल के अहदाफ और इस कलीदी मनसूबे पर पाकिस्तान के भरपूर ताउन का भी इआदा करेंगे। वज़ीर आज़म BRF के इफ्तिताही इजलास में शिरकत के साथ आलमी मईशत में मवासलाती राबतों के मौजू पर 18 अक्टूबर को आला सतही फोरम से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म की चीन के सदर शी जिनपिंग से दो तरफ़ा मुलाकात के साथ साथ आला चीनी क़यादत और फोरम में शरीक दीगर ममालिक के सरबराहान से भी मुलाकात होगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए चीन में कारोबारी शख्सियात और सरमायाकारों से भी मुलाकातें करेंगे। सिंकियांग और पाकिस्तान के अवाम के माबैन ताल्लुकात और कारोबार और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए वज़ीर आज़म उरमची का भी दौरा करेंगे, जहाँ वज़ीर आज़म वहाँ के मकामी अमायदीन और कारोबारी शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ चीन के सदर की दावत पर तीसरे बेल्ट एंड रोड फोरम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर आज़म अपने दौरे में सदर शी जिनपिंग समेत चीन की आला क़यादत से मुलाकातों में दो तरफ़ा उमूर पर बातचीत करेंगे। मज़ीद तफसील बताएंगे आगा मसूद खालिद। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ BRI फोरम से आलमी मईशत में मवासलाती राब्तों के मौजू पर कलीदी खिताब के अलावा सदर शी जिनपिंग समेत चीन की आला क़यादत के साथ मुलाकातों में दो तरफ़ा अमूर पर बातचीत और चीन की कारोबारी शख्सियात और बड़ी कंपनियों के सरबराहों से भी मुलाकात करेंगे। This is certainly a very important forum in the sense that the Prime Minister will also address the high-level forum. Prime Minister will also have bilateral meetings with the Chinese leadership. The Prime Minister will also have meetings with the participating global leaders who are coming to attend the third BRF forum. Prime Minister is also will be meeting with some top Chinese businessmen. They are kind of the giants in the Chinese system. दौरे के मौके पर वज़ीर आज़म की चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के हवाले से भी मुलाकातें होंगी, जिनमें इस गेम चेंजर मंसूबे को मजीद वुसअत देने और मंसूबों की बरवक्त तकमील के हवाले से तबादला ख्याल होगा। दौरे के दौरान चीन के साथ ज़राअत, सेहत, ग्रीन एनर्जी, सनतों और स्पेस टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन के मुख्तलिफ समझौतों पर दस्तखत भी किए जाएंगे। This visit would help in strengthening bilateral cooperation and also including China-Pakistan economic cooperation, which is certainly an extremely important economic project. And then Prime Minister will also undertake a visit to Xinjiang province, will address the Xinjiang University, as well as meetings with the business community. The Prime Minister will also say his Jummah prayer in the Grand Mosque of Xinjiang. चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी ने दर हकीकत पाकिस्तान के माशी लैंडस्केप को तब्दील और समाजी और माशी तरक्की में अहम किरदार अदा किया है। In terms of contribution to our socio-economic development, it has been a huge success. When we look back at the achievements of the last 10 years, we have now completed more than 50 projects worth $25 billion. So this is a huge, investment coming as part of the China-Pakistan economic corridor. पाकिस्तान और चीन की कुर्बत के रिश्तों पर उस्तवार दोस्ती दुनिया के लिए एक मिसाल है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि चीन पाकिस्तान का हर आजमाइश पर पूरा उतरने वाला बेहतरीन दोस्त है। चीन भी पाकिस्तान को आयरन ब्रदर की हैसियत देता है। In Pakistan, we call China our best friend. And in China, Pakistanis are known as Bhatiye, the iron brother, and an expression which is only reserved for Pakistanis. So this is very touching. BRI बैनुल अक़वामी ताउन का प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए यकजहती, तरक्की, माशी और समाजी बहबूद और गुर्बत के खात्मे जैसे मकासद का हसूल मुमकिन बनाया जा सकता है। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि 7 दहाइयों पर मुश्तमिल पाक चीन दोस्ती भाईचारे और एतमाद पर कायम है। पाकिस्तान के अवाम चीन के साथ अपनी दोस्ती पर फख्र करते हैं। चीन में भी भाईचारे की इस्तिलाह पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिसका मतलब आयरन ब्रदर्स हैं। मारूफ चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स में शाया होने वाले अपने मजमून में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि पाक चीन दोस्ती दोनों मुल्कों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती है। पाकिस्तान चीन ताल्लुकात हमारी खारजा पॉलिसी का अहम जुज़्व हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन ने हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया। दोनों मुल्कों के अवाम के दरमियान मोहब्बत का रिश्ता पहाड़ों से ऊंचा, समंदरों से गहरा और
शहद से ज़्यादा मीठा है। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि पाकिस्तान और चीन का ये रिश्ता मजबूत स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में तब्दील हुआ है। बदलती इलाकाई और आलमी सूरत हाल में चीन पाकिस्तान दोस्ती बैन रियासती ताल्लुकात का मिसाली नमूना है। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मजबूत तस्वीराती शराकतदारी में तब्दील हो चुके हैं। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि चीन के अपने पहले दौरे में बैन अल-अक़वामी ताउन के लिए तीसरे बेल्ट एंड रोड फोरम में भी शिरकत करूंगा। BRI बैन अल-अक़वामी शराकतदारी, ताउन और गवर्नेंस का मुनफरिद तसव्वुर और आलमी बरादरी की मुश्तरका मुस्तकबिल का बुनियादी सुतून है। पाकिस्तान इन पहले मुल्कों में शामिल है जो BRI का हिस्सा बने। CPEC BRI का फ्लैगशिप मंसूबा है जिससे पाकिस्तान का माशी और समाजी मंजरनामा तब्दील हुआ है। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि CPEC की बदौलत इंफ्रास्ट्रक्चर की अपग्रेडेशन और इलाकाई राबते मजबूत हुए। CPEC से तवानाई की ज़रूरियात पूरी हुई और मुलाजमतों के नए मौक़े पैदा हुए। CPEC के 10 साल मुकम्मल होने पर पाकिस्तान में कई तकरीबात हुई। चीन के नायब वज़ीर आज़म ने CPEC के 10 साला तकरीबात में शिरकत की। निगरान वज़ीर आज़म का मज़ीद कहना था कि पाकिस्तान CPEC के लिए मुश्तरका तौर पर काम करने के लिए पुरज़्म है। CPEC को तरक्की और खुशहाली की राहदारी बनाने के हवाले से चीन की तजवीज़ की मुकम्मल हिमायत करते हैं। ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव के लिए पाकिस्तान का किरदार तामीरी रहा। चीन पाकिस्तान दोस्ती खित्ते में अमन और इस्तेहकाम का बाइस है। चीन और पाकिस्तान बुनियादी इशूज़ पर एक दूसरे की मुकम्मल हिमायत करते हैं। इलाकाई सलामती, खुद मुख्तारी, माशी तहफ़्फ़ुज़ और कश्मीर पर चीन के ताउन पर मशहूर है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि हम वन चाइना पॉलिसी की मुकम्मल हिमायत करते हैं। करीबी दोस्त, तस्वीरात शराकतदार और आयरन ब्रदर्स होने के नाते दोनों मुल्क मुश्तरका मुस्तकबिल की जानिब बढ़ रहे हैं। तवक्को है दोस्ती का ये रिश्ता आने वाले दिनों में नई बुलंदियों को छुएगा। और अब कुछ बात कर लेते हैं इसराइली जारहियत के हवाले से। गजा के निहत्ते मजलूम शहरियों पर काबिज सहूनी फोर्सेस की जानिब से वहशियाना हमले बदस्तूर जारी हैं। फलस्तीनी न्यूज़ एजेंसी वफा के मुताबिक इजरायली तैयारों ने रफा शहर में वाक़े एक फलाही तंजीम की इमारत को निशाना बनाया है जिसमें 18 अफराद शहीद हो गए। फलस्तीनी वजारत सेहत के अदाद शुमार के मुताबिक गजा में 10 रोज से जारी सहूनी जारहियत में शुहदा की तादाद 2670 हो गई है, जबकि 9600 अफराद जख्मी हो चुके हैं। मकबूजा मगरबी किनारे में भी काबिज अफवाज ने बर्बरियत की इंतहा करते हुए 57 फलस्तीनियों को शहीद और 1200 से ज्यादा अफराद को जख्मी कर दिया। गजा और मगरबी किनारे में शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 2727, जबकि जख्मियों की तादाद 10,800 से तजावुज कर चुकी है। इसराइल के वहशियाना हमलों के बायस बड़ी तादाद में फलस्तीनी शहरी बेसर व सामानी के आलम में मिस्र की सरहद के करीब वाक़े शहर खान यूनस पहुँच चुके हैं। ताहम खान यूनस में भी रिहाइश के और खाने पीने के इंतजाम न होने के बायस पनाहगुज़ीनों को शदीद मुश्किलात दरपेश हैं। रफा क्रॉसिंग पर शहरी बड़ी तादाद में मिस्र की जानिब से सरहद खोलने के इंतजार में मौजूद हैं। काबिज इजरायली फौज के तर्जुमान ने दावा किया है कि 5 लाख लोग शिमाली गजा से निकल चुके हैं। इजरायली फौज गजा पर बड़े हमले की तैयारी कर रही है। इजरायली फौज का कहना है कि ऑपरेशन की नोयत ऐसी होगी जिसमें आम शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना मुमकिन नहीं होगा। दूसरी जानिब 7 अक्टूबर से जारी हमास की कार्रवाइयों में हलाक इजरायलियों की तादाद 1400 हो गई है, जबकि 3500 अफराद जख्मी हुए। इजरायली फौज ने अपने 291 एहलकारों की हलाकत की भी तस्दीक की है। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा में सूरत हाल को संगीन करार देते हुए इसराइल से फौरी तौर पर मुहासरा खत्म करने का मुतालबा किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी इमदाद के इदारे के सरबराह फिलिप लेज़रेनी ने कहा कि गजा में ज़िंदगी का तसव्वुर ख़त्म होता जा रहा है। ऐसा लगता है कि दुनिया से इंसानियत मर चुकी है। गजा में पानी, खुराक और अद्वियात ख़त्म हो रही हैं। अस्पतालों के पास सिर्फ 1 दिन का ईंधन बचा है। उन्होंने गजा के मुहासरे को इज्तमाई सज़ा करार दिया। सेव द चिल्ड्रन ने कहा है कि गजा में हालात इंतहाई ख़राब हो चुके हैं, अब कोई जगह महफूज नहीं रही। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने अपने ट्वीट में कहा है कि पाकिस्तान को गजा में जारी तशद्दुद और जानी नुकसान पर गहरी तशवीश है। हम फ़लस्तीन के मज़लूम अवाम के साथ यकजहती से खड़े हैं और गजा में फौरी जंगबंदी करने और नाकाबंदी ख़त्म करने का मुतालबा करते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि इसराइल का गजा में शहरियों को बिला जवाज़ निशाना बनाना तहज़ीब के तमाम उसूलों के खिलाफ और बैनुल अक़वामी क़वानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा कि तशद्दुद के खात्मे को फ़लस्तीन की सरजमीन पर बरसों के ग़ासिबाना और गैर कानूनी कब्जे और उसके आवाम के खिलाफ जाबराना पॉलिसियों के तनाजुर में देखने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी को महसूर गजा तक फौरी तौर पर दरकार इमदादी सामान की नक़्ल हमल के लिए महफूज और गैर महदूद इंसानी राहदारी खोलने के लिए इक़दाम करने चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान गजा की तेज़ी से बिगड़ती हुई सूरत हाल पर OIC और उसके रुकन ममालिक के साथ करीबी राबते में है। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी 18 अक्टूबर को OIC की एग्जीक्यूटिव कमेटी के हंगामी इजलास में शिरकत करेंगे। गजा के लोगों की तकलीफ को दूर करने के लिए फौरी इक़दामात पर जोर देंगे।
अमरीकी सदर जो बाइडन कहते हैं कि गजा पर इसराइल का कब्जा बड़ी गलती होगी। अमरीकी टेलीविजन को दिए गए इंटरव्यू में सदर बाइडन ने इजरायली जहरियत का दिफा करते हुए कहा है इसराइल को हमास के खिलाफ अपने दिफा का हक हासिल है। शिद्दत पसंदों का ताक़ुब करना और उन्हें मंतकी अंजाम तक पहुँचाना ज़रूरी है। सदर जो बाइडन ने कहा कि वो हमास की जानिब से यरगमाल बनाए जाने वाले 13 अमरीकियों की जल्द रिहाई के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं। बढ़ेंगे कुछ मजीद कौमी खबरों की जानिब। फ़लस्तीन में जंग के पेश नज़र अवाम ने पाकिस्तान के हालात और पाक फ़ौज के मुतालिक इजहार ख्याल करते हुए कहा है कि फ़लस्तीन के पास कोई बाकायदा फ़ौज नहीं, अगर होती तो वो उसकी सरहदों की मुहाफ़िज़ होती। अवाम ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो अमन है इस मुल्क में वो पाक फ़ौज ही की वजह से है। पाकिस्तान जो है वो बड़े मजबूत हाथों में है। पाकिस्तान फौज जो है भरपूर सलाहियत रखती है पाकिस्तान के दफा करने के लिए। हमारे लिए वो हमारे मुहाफिज बन के खड़े हैं, अगर वो नहीं होंगे तो हमें सेफ्टी नहीं है। क्योंकि फ़लस्तीन के पास प्रॉपर कोई एक उसकी आर्मी नहीं है, क्योंकि फौज किसी भी मुल्क के पास हो ये उसकी मुल्क की सरहदों की हिफाजत की ज़ामन होती है। पाक फौज जो है वो शेर की तरह दुश्मन के आंखों में आंखें डाल के खड़ी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह जो अमन हमारे मुल्क पाकिस्तान में वो पाक फौज की वजह से है। मैं पाक फौज का बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमें अपने फौज पर फख्र है, उनकी वजह से हम आबाद है और हम खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारी अफवाज तो माशाल्लाह 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 पाकिस्तान का ना सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ कर रही हैं बल्कि कोई मुश्किल आती है तो बिल्कुल खड़ी हो जाती हैं, हर मुश्किल में हर परेशानी में। फौज बड़ी ज़रूरी होती है एक मुल्क के दिफा के लिए, खुसूसन ऐसे हालात में जब आपके इर्द गिर्द आपके पड़ोसियों के साथ आपके तल्लुकात अच्छे ना हो। मुझे हमें अपने फौज पे फख्र है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फौज जो है मुल्क को संभाल रही है, हम महफूज है, आराम से सो रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान की वजह से हम सुकून से बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारा अफवाज पाकिस्तान टिकटों पे इतना सर्दियों का बोझ उठा के वहाँ बैठे हुए। इनके भरोसे से हम सुकून से बैठे हुए। हमारी पाकिस्तान फौज बहुत मजबूत है, हम पाक फौज के साथ हैं। पाक फौज की ही वजह से जो है ना हम लोग जो है यहाँ महफूज है। जो हालात चल रहे हैं फ़लस्तीन का या शाम का, जितने भी मुस्लिम ममालिक आप उठा ले, तो वो फौज ना होने की वजह से हम अगर आज पुरसकून है पुरअमन है तो हमारी पाक फौज की वजह से। जो आलमी बेरादरी है उनके ऊपर दबाव डालना चाहिए कि उनके लिए कानून बनाए, उनको भी आज़ादी का हक देना चाहिए। पाकिस्तान की जो अफवाज है वो अपनी जानों का नजराना दे रही है और यहाँ पब्लिक जो है बिल्कुल रिलैक्स है और आराम की नींद सो रही है। फौज ने हमारे लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी और हम आज बहुत आज़ादी से घूम रहे। जिन ममालिक के कमज़ोर दिफा है, जैसे आप देख लें आजकल फ़लस्तीन के जो अशर हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पाक फौज में फ़ख्र है। पाकिस्तानी अवाम पाक फौज के साथ खड़ी है, पाक फौज जिंदाबाद। कोई भी दुश्मन हमारी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता, इस वजह से कि हमारे पास न सिर्फ पाक फौज मजबूत है बल्कि तमाम अवाम जो है ये पाक फौज की पुष्ट पे खड़ी है। दुनिया में भी एक बेहतरीन फौजों में आता है और ताकतवर भी है, अल्हम्दुलिल्लाह हम इस पे फख्र करते हैं। बहुत अच्छी खिदमत है उनके, हर एक मामलात में वो फौज ही है, हमारे साथ खड़ी है। फौज है तो पाकिस्तान है। इनकी वजह से हम घरों में रह रहे हैं, अल्लाह इनको जिंदगी दे, हमारा तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, इनका तहफ़्फ़ुज़ खुदा ही करेगा। हमारी फौज यही मुस्तकम फौज है जिसकी वजह से कोई दुश्मन हमारी तरफ मेली आंख से उठाने की जुर्रत नहीं करते। के गवर्नर कामरान खान टेसोरी कहते हैं कि फ़लस्तीन में निहत्ते शहरियों पर जुल्म जबर ढाया जा रहा है। आलमी बरादरी को फ़लस्तीन की आवाम के लिए आवाज़ उठाना होगी। पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म कायद मिल्लत लियाकत अली खान के बरसी के मौके पर उनकी कब्र पर हाज़िरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध ने कहा, अरब ममालिक फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ उठाएं, पाकिस्तान के आवाम उनके साथ खड़े हैं, पूरी दुनिया मजलूम फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती करे। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी पर खुशामदीद कहेंगे, तमाम स्टेक होल्डर्स को मुल्क की बेहतरी और तरक्की के लिए मिलकर बैठना होगा। इससे कबल गवर्नर सिंध ने कायद मिल्लत लियाकत अली खान की कब्र पर हाज़िरी दी, फूल चढ़ाए और फातिहा पढ़ी। बाद में मेहमानों की किताब में अपने तासुरात कलमबंद और हुसूल पाकिस्तान की जिद्दोजहद में लियाकत अली खान की खिदमात को खिराज अक़ीदत पेश किया। अटक में फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए जमात इस्लामी और सिविल सोसाइटी ने रैली निकाली। शरका ने पीपल्स कॉलोनी कायद आज़म चौक पर एहतजाज किया, जिसमें अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। इजरायली मज़ालिम के खिलाफ मजलूम फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती का इजहार किया गया। शरका ने हाथों में प्लेकार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे, जिन पर मजलूम फ़लस्तीनियों के हक और इजरायली मज़ालिम के खिलाफ नारे दर्ज थे। इस मौके पर मुक़र्ररीन का कहना था कि हमारी अफवाज और आवाम फ़लस्तीन के मजलूम अवाम के साथ खड़ी है, हमें आगे बढ़कर फ़लस्तीनी बहन भाइयों की हर मुमकिन मदद करना होगी। गजा में इजरायली जारियत की मज़म्मत करते हैं, इजरायली बर्बरियत को रोकने के लिए अक़वाम आलम को किरदार अदा करना होगा। निगरां वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी ने लाहौर में बंद रोड पर ज़ेरे तामीर कंट्रोल्ड एक्स कॉरिडोर मनसूबे का दौरा किया। उन्होंने न्यासी चौक से बाबू साबू तक बनने वाले मेगा प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त और तरक्याती कामों का जायजा लिया। वज़ीर आला ने कहा कि मनसूबे से लाहौर के किसी भी इलाके से मोटरवे तक फौरी रसाई मुमकिन होगी, वक्त और ईंधन की बचत होगी। मोहसिन नकवी ने मनसूबे की तामीर के दौरान ट्रैफिक को रवा दवा रखने और बंद रोड के दरमियान स्ट्रीट लाइट्स और पोल्स को दूसरी जगह पर मुंतकिल करने की हिदायत की।
निगरान वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर शमशाद अख्तर ने मौसमियाती ख़तरात से दो चार मईशतों के लिए मुनक़िदा V20 मिनिस्ट्रियल डायलॉग एक्स में शिरकत की। मुबाहिसे का मकसद मौसमियाती ख़तरात से निपटने के लिए आलमी हिकमत अमली तैयार करना था। निगरान वज़ीर ख़ज़ाना ने मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक मालियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए हुकूमत पाकिस्तान की अज़्म का इज़हार किया। उन्होंने पायदार इक़्तिसादी तरक्की और मौसमियाती लचक से मुतालिक मुस्बत तजावीज़ भी पेश की। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स ने बलूचिस्तान के साहिली जिला गवादर के इलाके जीवानी में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में एक स्पीड बोट से भारी मिकदार में मुनशियात बरामद की हैं, जिसमें चरस और आइस शामिल हैं। तर्जुमान पाकिस्तान कोस्ट गार्ड के मुताबिक ये मुनशियात स्पीड बोट के जरिए स्मगल की जा रही थी। स्पीड बोट की चेकिंग के दौरान 833 किलोग्राम आला क्वालिटी की चरस और 42 किलोग्राम आइस बरामद कर ली गई है। पकड़ी जाने वाली मुनशियात की आलमी मार्केट में मालियत 20.86 मिलियन डॉलर के लगभग है। और पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों का इनखला जारी है। हुकूमत की जानिब से दी गई डेडलाइन में 15 दिन रह गए। मजीद 1530 लोग तोरखम बॉर्डर के जरिए वतन रवाना हो गए हैं। 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ना होगा, वरना कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तारी और मुल्क बदरी को यकीनी बनाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर अफगान मुहाजिरीन का इनखला आज 11वें रोज भी जारी है। तोरखम कस्टम हुकाम के मुताबिक आज भी अफगान खानदानों को लेकर 23 टैक्स तोरखम सरहदी गुजरगाह पहुंचे। कानूनी कार्रवाई के बाद अफगान खानदानों को अफगानिस्तान जाने की इजाज़त दी जाएगी। अफगान कमिश्नरेट के मुताबिक गुज़श्ता 10 रोज में तोरखम सरहदी गुजरगाह से 800 से ज़ायद खानदान अफगानिस्तान जा चुके हैं। अफगान मुहाजिरीन की अपने मुल्क वापसी का सिलसिला 31 अक्टूबर तक जारी रहेगा। स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के रोकथाम के मुस्बत नताइज मंजर-ए-आम पर आ गए। कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ कार्रवाइयों के मुस्बत नताइज आना शुरू हो गए हैं। जारी कार्रवाइयों के दौरान अब तक कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुख्तलिफ इलाकों से मजमूई तौर पर 4275 मेट्रिक टन खाद, 2156 मेट्रिक टन गंदम व आटा, 8259 मेट्रिक टन चीनी और 0.17 मिलियन लीटर ईरानी तेल बरामद किया है। डेरा इस्माइल खान से 274 मैट्रिक टन चीनी, जबकि रावलपिंडी, कुचावाला, फैसलाबाद, सरगोदा, साहिवाल, कसूर, मुल्तान, डेरा गाजी खान और झंग से 146 मैट्रिक टन खाद, 45 मैट्रिक टन गंदम और आटा, 123 मैट्रिक टन चीनी बरामद कर ली गई है। सिंध से 4077 मैट्रिक टन खाद, 2110 मैट्रिक टन गंदम और आटा, 6902 मैट्रिक टन चीनी, जबकि 1.15 मिलियन लीटर ईरानी तेल भी बरामद किया गया है। चमन और इसके मुल्का इलाकों से 4.536 मैट्रिक टन खाद और 326 मैट्रिक टन चीनी बरामद की गई है। कोयटा और उसके मुल्का इलाकों से कामयाब कार्रवाई में 273 मैट्रिक टन चीनी बरामद की गई है। इसके अलावा कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कराची में भी कामयाब कार्रवाई की, जिसमें 63 गैर कानूनी वाटर हाइड्रेंट्स को सील कर दिया गया। पंजाब के इंस्पेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर कहते हैं कि पंजाब पुलिस दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म है। पीटीवी न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद सुफियान से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस को जदीद टेक्नोलॉजी से हम आहंग करने के साथ साथ पुलिस के महकमे में इस्लाहात की जा रही हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आईजी ऑफिस में। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उस्मान अनवर, आईजी पंजाब। इनसे जानते हैं पुलिस में बहुत इस्लाहात की जा रही हैं, हम देख रहे हैं बड़ा डिजिटाइजेशन की जा रही है, थानों को भी बड़ा अपग्रेड किया जा रहा है। लोगों की पब्लिक सर्विस डिलीवरी इज़ आवर एंड गोल। हम लोगों को सर्व करना चाहते हैं और जिस फोर्स ने सर्व करना है उसको हम इकट्ठा कर रहे हैं, जेल कर रहे हैं, उनके वेलफेयर का थोड़ा सा ख्याल कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज से कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी और चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद जमान साहब की मेहरबानी है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने हमें बहुत इसमें सपोर्ट किया है। हमारी अस्करी क़यादत इसमें पुलिस को इम्प्रूव कर रही है। कुंडल में हमारी जो कि वहाँ डिवाइसेस लगी हैं, APCs आई हैं, ये सारी अस्करी क़यादत की मेहरबानी से एपेक्स कमेटी फैसले करती है, वो हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं। जी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब का कहना था कि दहशतगर्दी के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी और दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा। और पाक वतन की मिट्टी में अनगिनत शहदा का खून शामिल है। शहादतों का ये सफ़र पाकिस्तान के वजूद में आने से लेकर अब तक जारी सारी है। इन शहदा में से एक सूबेदार कैसर रहीम शहीद भी हैं, जिन्होंने मुल्क के दिफा के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। सूबेदार कैसर रहीम शहीद ने ज़िला बाजोड़ में 14 सितंबर 2023 को कोयटा के इलाके वली तंगी में दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। सूबेदार कैसर रहीम ने सोगवारान में वालिदा, बेवा और बच्चे छोड़े। सूबेदार कैसर रहीम शहीद के घर वालों ने अपने एहसासात बयान करते हुए कहा, कैसर रहीम सूबेदार मेरा बेटा है, बहुत अच्छा है, बहुत चंगा दिल का टुकड़ा है, बहुत चंगा है।
मैं खुश हुआ, मैं शुक्र अदा करेंगे। कौम के वास्ते शहीद हो गए, उन को फख्र है। ये फख्र है जो वो अपने पाकिस्तान के ऊपर कुर्बान हो गया, और वो जब भी आता था मुझे बच्चों के साथ बहुत प्यार करता था, तो मुझे इस पे बहुत फख्र है। कैसा रही सूबेदार हमारा भाई था, हमें बहुत अजीज था, हम बहुत इससे प्यार करते थे। हमारे भाई ने जान कुर्बान अपनी कर दी अपने वतन के लिए। दिली ख्वाहिश थी मैं फौजी बनूं, कौम की खिदमत करूं। खुश होता था, मैं खुश हूँ। बहादुर सिपाही था, वापस आया तो फिर पाकिस्तानी परचम में लिपट कर आया था। मैं इस्लामाबाद में था, मुझे फ़ोन किया है, कहता है मैं जा रहा हूँ ऑपरेशन पे, तो मेरे लिए दुआ करना। और अल्लाह ताला से मैंने ख़ुद दुआ की है जो अल्लाह ताला मुझे शहादत का रुतबा दे। जब वहाँ पे ऑपरेशन में गए हैं, दहशतगर्दों के साथ लड़ाई में उन्होंने 3-4 दहशतगर्दों को जहन्नम वसल किया और उसके बाद जामे शहादत नोश फरमाया। उसकी शहादत की वजह से हमारे माशरे में हमारी इज़्ज़त में इजाफा हुआ है। मेरे अबू की यही ख्वाहिश थी कि मैं आर्मी में जाऊं, और जैसे जिस तरह मेरे अबू लड़े अपने मुल्क की खातिर, अपनी यूनिट की खातिर, उस तरह मैं भी अपनी मुल्क की खातिर कुर्बानी दूं। अबू तो अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा उनकी याद आती है, उनकी बातें बहुत अच्छे थे मेरे अबू। पाक फ़ज़ाइया के ऑपरेशनल एयरबेस पर 14 मुल्की फ़ज़ाई मश्क इंडस्ट्रियल 2023 पूरी आबोताब से जारी है। तर्जुमान पाकिस्तान फ़ज़ाइया के मुताबिक ये मश्क खित्ते की सबसे बड़ी फ़ज़ाई जंगी मश्कों में से एक होने की बदौलत नुमायां हैसियत रखती है। ये फ़ज़ाई मश्क बैनुल-अक़वामी ताउन को तक़वियत देने और मुल्क की फ़ज़ाई सलाहियतों को फ़रोग़ देने की जानिब एक अहम संग मील साबित होगी। फ़ज़ाई मश्क में पाकिस्तान, तुर्किया, सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, मिस्र, ओमान, बहरीन, आज़रबाईजान, इंडोनेशिया, मराकश, उज़्बेकिस्तान, चीन और हंगरी की फ़ज़ाई अफ़वाज हिस्सा ले रही हैं। इन फ़ज़ाई मशकों के बायस बैनुल-अक़वामी बरादरी की पूरी तवज्जो इस वक्त पाकिस्तान की जानिब मबज़ूल है, जिसकी बदौलत पाक फ़ज़ाइया जदीद फ़ज़ाई जंगी हिकमत अमलियों और शरीक ममालिक के माबैन बाहमी ताउन को फ़रोग़ देकर आलमी तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। ज़िला क़सूर के दूर दराज इलाके कंगनपुर के वासियों के लिए पाक फ़ौज की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। मेडिकल कैंप में मुतअद्दिद डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने हिस्सा लिया। 710 मरीजों बशमूल 329 ख़वातीन, 136 बच्चे और 245 मर्द हजरात का तिब्बी मुआयना किया गया। नायाब टेस्ट्स के मुफ्त फराहमी के अलावा मरीजों को मुफ्त अद्वियात भी दी गईं। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने हिफ्ज़ान सेहत समेत मलेरिया, डेंगू से बचाव, मुतअद्दिद बीमारियों से बचाव और इलाज के हवाले से आगाही लेक्चर्स दिए। अवाम ने पाक फ़ौज के अवामी बहबूद के लिए इक़दाम की तारीफ़ की और ऐसे इक़दाम का शुक्रिया अदा किया। दूर दराज के इलाकों के नादार लोगों के लिए पाक फ़ौज की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप्स का इनेकाद मामूल का हिस्सा है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में काबिज़ इंतज़ामिया के खिलाफ बढ़ते हुए गम और गुस्से के दौरान श्रीनगर और जम्मू में सरकारी मुलाजमीन ने एहतजाजी मुजाहरे किए। KMS के मुताबिक एहतजाजी मुजाहरों का एहतमाम जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम ने मकबूजा जम्मू कश्मीर के गरमाई और सरमाई दोनों दारुल हुकूमतों में किया था। श्रीनगर के प्रेस इनक्लेव और जम्मू के हरी सिंह पार्क में सैकड़ों मुलाजमीन जमा हुए और काबिज हुक्काम के खिलाफ और अपने मुतालिबात के हक में नारेबाजी की। मुलाजमीन ने इंतजामिया को अल्टीमेटम दिया कि वो उनके मुतालिबात पर फौरी तवज्जो दे। और अभी आपको लिए चलेंगे खेलों की खबरों के लिए, जिसके लिए मुंतजर हैं शफीक खान। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान और स्पोर्ट्स बुलेटिन में बात करते हैं ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के हवाले से। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप के 14वें मैच में आज ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका की टीमें मद्दे मुकाबिल हैं। लखनऊ में होने वाला ये मैच दिन 1:30 पर शुरू होगा और PTV स्पोर्ट्स HD पे बराह रास्त दिखाया जाएगा। रवा टूर्नामेंट में दोनों टीमों ने 2-2 मैचेस खेल रखे हैं, ताहम किसी ने भी फतह का मजा नहीं चखा। एक रोजा क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका की टीमों के दरमियान अब तक 102 मैचेस खेले जा चुके हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया 63 मैचेस में कामयाब हुआ, जबकि श्रीलंका ने 35 मैचेस में फतह हासिल की।
4 मैचेस बेनतीजा रहे। वर्ल्ड कप की तारीख में दोनों टीमें 10 बार मद्दे मुकाबिल हुई। ऑस्ट्रेलिया ने 8 मैचेस जीते, जबकि श्रीलंका को 1 मैच में कामयाबी मिली। 1 मैच बेनतीजा रहा। Tipped away towards mid-wicket. What a beautiful shot on Alex Carey to आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के 13वें मैच में अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को अपसेट शिकस्त दे दी। अफगानिस्तान टीम ने दिफाई चैंपियन इंग्लैंड को 69 रन से हरा दिया। 285 रन के हदफ के ताक़ुब में इंग्लैंड की पूरी टीम 41वें ओवर में 215 रन बनाकर आउट हो गई। तफसील निसार मेहदी की इस रिपोर्ट में देखिए। रहमानुल्लाह गुरबाज के जारहाना 80 रन, राशिद खान और मुजीबुर रहमान की 3-3 विकेटें अफगानिस्तान की दिफाई चैंपियन इंग्लैंड को अपसेट शिकस्त। दिल्ली में खेले गए मैच में दिफाई चैंपियन इंग्लैंड ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। अफगानिस्तान की टीम पहले बैटिंग करते हुए 49.5 ओवर्स में 284 रन बनाकर आउट हो गई। ओपनर्स रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जादरान ने अफगानिस्तान को 114 रन का शानदार आगाज दिया। इब्राहिम जादरान 28 रन बना सके। दूसरी जानिब रहमानुल्लाह गुरबाज ने 57 गेंदों पर 80 रन की इनिंग्स खेली, जिसमें 4 छक्के और 8 चौके शामिल थे। big shot. दीगर बल्लेबाजों में इकराम अली खेल 58 और मुजीबुर रहमान 28 रन बनाकर नुमाया रहे। इंग्लैंड की जानिब से आदिल राशिद ने 3 और मार्क वुड ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। 285 रन के जवाब में इंग्लैंड की बैटिंग लाइन अफगानिस्तान के स्पिनर्स का सामना न कर सकी और पूरी टीम 40.3 ओवर्स में 215 रन बनाकर आउट हो गई। इंग्लैंड की जानिब से सिर्फ हैरी ब्रुक ने कुछ मुजाहिमत दिखाई और 66 रन बना सके। दीगर खिलाड़ियों में डेविड मलान 32 और आदिल राशिद 20 रन बनाकर नुमाया रहे। मुजीबुर रहमान ऑलराउंड कारकर्दगी पर मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। निसार मेहदी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में कौमी टीम अपना चौथा मैच 20 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेंगलुरु में खेलेगी। कैंगरूज के खिलाफ मैच के पाकिस्तान क्रिकेट टीम भारतीय शहर अहमदाबाद से बेंगलुरु पहुंच गई है। इवेंट में पाकिस्तान टीम अब तक 3 मैचेस खेल चुके हैं, जिनमें से 2 में कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज आराम और कल से प्रैक्टिस सेशंस का आगाज करेगी। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप स्पेशल से इतना ही। अब चलते हैं मेन डेस्क की जानिब। और अब मौसम की सूरत हाल। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेदर अपडेट के साथ मैं हूं कासिम अली। नाजरीन, आपको आगाह करें कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर कायद का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 24.3 डिग्री और हवा में नमी का तनासुब 63% रिकॉर्ड किया गया है। मगरबी हवाओं के ज़ेर असर गुज़श्ता रात शहर में गर्द आलूद हवाएँ और आंधी के साथ मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध में आज और कल मगरबी हवाओं की एंट्री से कहीं हल्की और कहीं दरमियाने दर्जे की बारिश मुतवक्के है। जैकबाबाद, कश्मोर, शिकारपुर, सखर, गोटकी, खैरपुर, सांगड़ और उमरकोट में आंधी, तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है, जबकि कराची में मौसम अब्र आलूद रहेगा। रात और दिन के औकात में बूंदाबांदी और हल्की बारिश का इम्कान है। नाज़रीन, महकमा मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में चित्राल, दीर, सवात, मालाकंड, बोनेर, शांगला, बटगरा, मानसेरा, एबटाबाद, हरीपुर, सवाबी, मर्दान, चारसद्दा, नौशहरा, पेशावर, कोहाट, हंगू, करक, बनू, लकी मरवत, डीआई खान, टांक और वजीरिस्तान के अजला में कहीं कहीं गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश का भी इम्कान है। सूबे के बुलंदोबाला पहाड़ों पर बर्फबारी, जबकि मैदानी इलाकों में यालाबारी का भी इम्कान है।
जी नाज़रीन, बात करेंगे मुल्क के पहले वज़ीर आज़म नवाबज़ादा खान लियाकत अली खान की, जिनको इस जहान फ़ानी से रुखसत हुए 72 बरस बीत गए। सुहेल जमाली रिपोर्ट करेंगे। मुल्क के पहले वज़ीर आज़म नवाबज़ादा लियाकत अली खान का शुमार तहरीक आज़ादी के रहनुमाओं और बानियान पाकिस्तान की पहली सफ़ में होता है। उनकी मुल्क व मिल्लत के लिए खिदमात तारीख का एक सुनहरा बाब है। अक्टूबर 1896 में मुत्तहिदा हिंदुस्तान में ज़िला करनाल के नवाब ख़ानदान में पैदा होने वाले लियाकत अली खान ने 1918 में MAO कॉलेज अलीगढ़ से ग्रेजुएशन किया। इसी साल वो कानून की आला तालीम के लिए बरतानिया चले गए, जहां ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री ली। अगले बरस हिंदुस्तान वापसी पर अमली सियासत में हिस्सा लिया और मुस्लिम लीग में शामिल हुए। तहरीक आज़ादी में सरगर्म शमूलियत और बानिया पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना के दस्ते रास्त की हैसियत से 11 बरस मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी रहे। 1946 में जब अबूरी हुकूमत कायम हुई तो उस हुकूमत में लियाकत अली ख़ान को वज़ीर ख़जाना का ओहदा दिया गया और ये एक बड़ा चैलेंजिंग ओहदा था। यही लियाकत अली ख़ान की सलाहियतों का एक इम्तहान था, जिसमें लियाकत अली ख़ान पूरी तरह से कामयाब हुए और जो बजट आपने पेश किया उसे एक गरीब दोस्त बजट कहा गया। क़याम पाकिस्तान के बाद बतौर वज़ीर आज़म उन्होंने कायदाना सलाहियतों का मुजाहरा किया। नौज़ायदा मुमलिकत की इक़्तिसादी सूरत हाल का इस्तेहकाम, आज़ाद मईशत का क़याम, महाजरीन की आबादकारी, चीन को तस्लीम करना और ख़ारजा पॉलिसी की तश्कील उनके ज़र्री कारनामे हैं। 1949 में दस्तूर की तश्कील के लिए असम्बली से करारदाद मकासद की मंजूरी उनके एहसास शख्सियत होने की दलील है। 1949 में एक करारदाद मकासद पेश की गई, जिसने पाकिस्तान की आईनी सिमत का तयन कर दिया। 16 अक्टूबर को रावलपिंडी के जलसा आम में इस बतले जलील को फायरिंग करके शहीद किया गया। कलमा तैयबा के विरद के साथ खुदा पाकिस्तान की हिफाजत करे, उनके आखिरी अल्फाज थे। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। और न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।